ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا حضرت. اجازت ہے بولو؟ ڈر گئے کیا؟ اجازت ہے بولو؟ حشر کا جب میدان ہوگا سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دو چہرے ہوں گے, پیچھے کو اور آگے کو, جن کے دو چہرے ہوں گے. ایسا اگر ڈھکیا میں کوئی شخص آ جائے جس کا آگے کو بھی اور پیچھے کو بھی ہو تو بولو ڈھکیا میں کوئی رکے گا؟ پھر سب گنے کے کھیت میں ہوں گے. اتنے تو تم بہادر ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے, ایک آدھ 2 سال پہلے, بلکہ 3-4 سال پہلے وہ چٹیاں کاٹنے والی نکلی تھی, نام سنا ہوگا تم نے. بڑی عورتیں دوپٹہ اتارے پھر رہی تھی, پھر تو صاحب بڑھیا سے بڑھیا بھی دوپٹہ لپیٹے پھر رہی تھی, مارے ڈر گئے. میں تو دعائیں کر رہا تھا 1 مہینہ اور گھوم جائے نا وہ تو سب کوئی پردے والا بنا جاتی وہ. پھر تو سب کے جوڑے تھے, ورنہ یہ زمانہ, یہ وقت, یہ دور, اللہ معاف فرمائے, 2 چہرے والے لوگ ہوں گے. پوچھا جائے گا آقا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگا کر کے ایک دوسرے میں لڑائی کرا دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں. ایک تو رشتہ ویسے ہی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ لڑکے والے ویسے ہی ننگے پیدا ہو گئے, اب بھکاری پیدا ہو گئے, بھک منگے ہو گئے. بھک منگے لڑکے کے نام پہ, جہیز کے نام پہ کوئی 4 پہیوں کی مانگ رہا ہے تو کوئی بلٹ مانگ رہا. چاہے 4 پہیوں والی میں اور بلٹ والی میں تیل ڈالنے کی حیثیت نہیں ہے, مگر مانگ رہا, مانگ. تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. اگر اللہ تمہارے گھر میں 7-8 بیٹیاں دے دیتا تو کیا کر لیتا؟ ارے 500 روپے کمانے والا مزدور جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں, جس کے گھر میں 3 بچیاں ہیں, ایک شادی 5 لاکھ میں تقریباً کم سے کم ہو رہی ہے. کیا 15 لاکھ روپے پوری زندگی میں جمع کر سکتا ہے وہ؟ اس کے ساتھ کھانا پینا, چائے پتی, کپڑے لتے, دوائی, یہ سارا خرچ ہے. مکان بھی بنانا, اس کے باوجود یہ سب کرنا, اور تم نے اتنا منہ پھیلا دیا کہ صاحب بلٹ مانگ رہے, بلٹ. ٹانگیں پڑ رہی ہیں ٹیڑھی بیڑی اور مانگ رہا بلٹ. چلا جانے رہا اس کبڑے سے, کولا ہے ادھر, کب ہے ادھر, بلٹ مانگ رہا بلٹ. ذرا سوچنے کی بات ہے یار. تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا سوچنے کی بات ہے یار. ٹانگیں پڑ رہی ہیں ایسے جیسے ٹڈی کی, اور بولے بلٹ ملی ہے, بلٹ. اللہ کے بندے کچھ تو سوچو یار. ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں. نبی کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم تھے. بچے جوان ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تھا. 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. بچے جوان ہو گئے. بی بی نے کہا میرے سرتاج گھر میں بہو چاہیے, بہو. اور تمہیں کیا چاہیے؟ بلٹ. اور کیا چاہیے؟ وہ پرکٹی. اور کون سی چاہیے؟ بے حیا. کہاں سے میرے سرتاج بہو چاہیے؟ حضرت عمر رات کے آخری حصے میں مدینہ شریف میں چکر لگا رہا ہے, گھوم رہا ہے. کیوں؟ ان کا گھومنا اور تمہارا گھومنا الگ ہے. تمہارا گھومنا کیا, اگر کسی کی باہر موٹر لگی ہے وہ کھول کے بھاگ گیا, کسی کا نل تھا وہ توڑ گیا,
किसी के ट्रैक्टर की बैटरी खोल के चला गया। क्या यार, तौबा तौबा। और जलसे में आ गए, बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सबसे बड़ा गुलाम यही है। जरा सोचो, वो चक्कर इसलिए लगा रहे थे कोई भूखा तो नहीं है, क्या बात, सुभान अल्लाह, कोई परेशान तो नहीं है, कोई मुसाफिर हाजतमंद कहीं चौराहे पर, कहीं रोड पर परेशान तो नहीं घूम रहा है। इतना बड़ा बादशाह चक्कर लगा रहा है। क्या बात। एक घर से आवाज आ गई, एक घर से आवाज आई, औरत की आवाज। कहा बेटी, कहा जी माँ। तुमने बकरियां दूली? कहा जी अम्मी दूली। अच्छा बेटा, ऐसा करो, दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है इतना ही पानी मिला दो। अगर कोई दूधिया हो तो वो भी सोच ले। 3 मरतबा पानी मिलाता है, 1 मरतबा सरकारी नल पे, 1 मरतबा तालाब में, फिर धान के खेत में। दूध भी कहां तक काम करे। आ गई मेंढक दूध में एक दिन, जब दिया तो गुड़पने से कूदी। बोले ये क्या? बोले मैं क्या करूं, भैंस ये ऐसा दूध दे रही है। अच्छा, मेंढक ये दूध दे रही है। अल्लाह के बंदो, लुकमा सही खाओ। हजरत उमर का जमाना, बहू कैसी हो ये बताऊं। हजरत उमर का जमाना, वो माँ बोली बेटी, कहा जी माँ। कहा बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा माँ मैं ऐसा नहीं कर सकती, तवज्जो रखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहा क्यों? हजरत उमर ने मना फरमाया है, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं है, इसलिए कि पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। कहा इसलिए। कहा बेटी एक बात बताओ, हजरत उमर देख थोड़ी रहे, इतनी रात में कोई देख थोड़ी रहा है। मगर बेटी भी कैसी बेटी थी, बेटी ने जवाब दिया, कहा माँ हजरत उमर नहीं देख रहे, मगर मेरा मौला तो जानता है, परवरदिगार तो जानता है, अल्लाह को तो मालूम है, वो सब कुछ जानता है। तो फिर वो माँ कहने लगी, बेटी बता तेरी शादी कैसे होगी, बता तुझसे कौन रिश्ता करेगा, जब मेरे पास 4 पैसे नहीं होंगे कौन तेरा हाथ मांगने आएगा, अरे तेरी शादी रह जाएगी। तो उस लड़की ने जवाब दिया, कहा माँ हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं, बगैर शादी के रह जाऊं। हराम और नाजायज पैसों से मैं शादी नहीं कर सकती, जिंदगी भर मैं कुंवारी रह सकती हूँ जी। हजरत उमर ने ढूंढ लिया, मिल गई बहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मिल गई बहू। और तुम क्या ढूंढते हो? अम्मा जाती है बहू देखने, मुचरी यहां तक मुंह पे, इतनी बड़ी झुमकियां जब तक नहीं मिलती ना तब तक रिश्ता पक्का करके नहीं आती। और जैसे ही झुमकियां मिल गई वैसे रिश्ता पक्का, चाहे कैसी भी हो। मगर सुनो, हजरत उमर अब घर गए, घर जाकर के बीबी से बोले, सुनो तुम कह रही थी ना बहू चाहिए, कहाँ ढूंढ ली, मिल गई? कहाँ मिल गई? कहाँ? कहा ऐसे ऐसे मैंने एक लड़की को सुना, वो लड़की जो अंधेरे में तन्हाई में गुनाह नहीं कर सकती तो वो किसी के सामने भी नहीं कर सकती, ऐसे ही घर की बहू होनी चाहिए। आज लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दिया, क्यों? उन्हें पर्दे वाली चाहिए ही नहीं। कैसे हालात, कहां से लाओगे ऐसी बहू? यहां से लेकर के यहां तक, बुरा मानने की बात नहीं है, ये तो गांव है ना, गांव, मगर फिर भी 50 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या होगा बोलो? जवान बेटियों पे मोबाइल। अल्लाह के बंदो थोड़ी सी अकल तो रखो, 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 तो कम से कम बर्बाद कर रहे हो, तो 1.5 तो फिर भी काम में लाओ। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? कौन है रिश्तेदार अलग से? तुम तो अब्बा हो ना, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार जो जवान कुंवारी बेटी को मोबाइल दे दिया? कौन है इसका जो बात करने को दे दिया?
तुम अब्बाओं के दुश्मन। बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? मुझे बताओ, जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? अरे ये किससे बात करने दिया है? आज जब पूरी बिगड़ जाती है, जब बातें होने लगती हैं, रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, लफंगे लड़के लगे पड़े मोबाइल पे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये माँ को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? और जब माँ को पता नहीं है तो बता, तू माँ बनी क्यों? 24 घंटे साथ रह रही है, तुझे क्यों पता नहीं चला तेरी बेटी किससे बात कर रही है? बाप को तो पता नहीं है, ये बेचारा काम पे चला गया, मगर ये माँ के करतूत है सब। बिगाड़ने का काम माँ का है, माँ का। माँ को पता है मेरी बेटी जीने पे खड़ी हुई बात कर रही है, नल पे खड़ी हुई बात कर रही है, लिहाफ में कमरे में अंदर बात कर रही है, छत पे आधे घंटे से किससे बात कर रही है? माँ ने क्यों नहीं पूछा? मोबाइल दिया क्यों है? और जब बिल्कुल बिल्कुल बेइज्जती होने के सर पे आ जाती है तो ये माँ अब मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और रोते हुए आती है अब्बा के पास, यानी अपने शौहर के पास। कह रही है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी थी, लगता किसी ने दिमाग फिरवा दिया, लगता इस पे जादू हो गया, लगता इस पे जिन हो गया, लगता इस पे भूत। कुछ नहीं आया। इस माँ की कमर पे 3 लठ मारो और गिरा दो, बता तेरे कारनामे क्या हुए? इस माँ की कमर पे लठ मारो, तेरी जवान बेटी थी, तूने इसको दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? तू शादियों में इसको जो डेकोरेशन बना के लेके जा रही है, तुम्हारे यहाँ शादी होगी, बकिया वालों सुन लो, थोड़ी बातें कर रही है, मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, एक लड़की के सर पे अगर दुपट्टा हो तो बता दियो, किसी का दुपट्टा इधर होगा, किसी का चूड़ा इधर होगा, किसी का गला खुला होगा, किसी की आस्तीन फटी होगी, किसी के कपड़े बारीक होंगे, किसी के वो बड़े बड़े शरारे, बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े दोबरे लपेटे फिर रही है। और अम्मा, ये माँ बेटी से ज्यादा जैसे नाचने वाली औरतें मुंह पे लपेटे फिर रही है, नीली पीली लाली लगा फिर रही है। इस अम्मा से पूछ, अरे तू 40 साल की हो गई, अरे बूढ़ी हो गई, बूढ़ी, तेरी बेटी जवान है मगर चोंच तेरी अब भी लाल है, तेरे बालों में अब भी गुम्फे हैं, तेरा जूड़ा अब भी खड़ा है, तेरा मुंह अब भी पुता हुआ है, अब भी पुता हुआ है। अरे बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, इस माँ से पूछो, ओ माँ, ओ माँ, बोल तेरी जिम्मेदारी कहाँ है? जरा कान खोल के सुन लो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।